الله وعلى بركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمن بی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ ایک جان تو دو جہاں فدا. یا رسول اللہ اس سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. کچھ مارو جاتا کہ گوتے گار کروں اس سے قبل نحیت اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کو حضور عقیدت حضور ختم الرسل مولا کل حاوی برحق نبی رحمت شفیع امت ہم سب کے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قریبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، اگر دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے تو یہ دل کسی کام کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے تو یہ زندگی ہی کسی کام کی نہیں ہے. جیسے دن کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے ایمان کے محفوظ کے لیے ہمارے آقا کی محبت کی ضرورت ہے. ہمارے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو یہ دل کسی کام کا نہیں ہے. آپ یہ زمین و زماں یہ دنیا دیکھ رہے ہیں تو یہ سب اس عشق کا ہی جلوہ ہے، یہ سب عشق کا ہی جلوہ ہے. آج ایک بیٹا ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں کیا کچھ نہیں بناتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا آرام سے رہے گا، میں فیکٹری بھی تیار کر دوں، مکان بھی تیار کر دوں، اس کے لیے کوئی بزنس تیار کر دوں کہ میرا بیٹا آرام سے رہے گا. لیکن اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے، لیکن اس کے محبوب ہمارے آقا تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے لیے اس نے ساری کائنات بنائی، جس کے لیے اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند پیدا کیا، چرند بنایا، پرند بنایا. دنیا کی جتنے چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے سب اپنے محبوب کے واسطے بنایا ہے. اور یہاں تک اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے فرمایا لولا محمد، اے آدم اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تبھی تو میرے اشراف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اے میرے عزیز، جب ہمیں ہر چیز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے تو ہم اپنی زندگیاں کی اپنی عادت کے مطابق گزارتے ہیں. آج کسی کو کہو کہ ہم آج نافرمانیاں کر رہے ہیں، آج ہم نیک کی طرف آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی میری زندگی باقی ہے، ابھی تو جوانی کے عالم میں ہیں، ابھی ہم موج کرنے کی عمر میں ہیں، ابھی تو ہم کھیلنے کودنے کی عمر میں ہیں. اے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی میرے آقا کی صدقے میں ملی ہے تو انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے. اے میرے عزیزو دنیا کی محبتوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے سے بہتر ہے جس نے دنیا کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کری ہے آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک مکار ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شاور کچھ، اس مردار پہ کیا لگ جائے دنیا دیکھی بھالی ہے. ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اسی اعلیٰ حضرت سے سنو. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ
भी खाली है। एक आओ आप बारगाह मुस्तफा में अपना हाथ दे दो और कहो या रसूलुल्लाह मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरी सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं जिसका उन्होंने हाथ थाम लिया, हबशा का हो तो बिलाल हबशी बना दिया, फारस का हो तो सलमान फारसी बना दिया, जिसका उन्होंने हाथ थाम लिया। क्या किया है? एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों से हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद जो नाते राह पर औरों के हावी हो गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमिना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते, कब्र में भी नहीं छोड़ते, हश्र में भी नहीं छोड़ते, हत्ता कि जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा के साथ, तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा के साथ। इसलिए उस बारगाह मुस्तफा में क्यों नहीं आते? मेरे आका खुद फरमाते हैं कि अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी चुभता है उसकी तकलीफ मुझे होती है। तो आज हम उस नबी के बारगाह में क्यों नहीं आते हैं? आज हम दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? ऐ मेरे अजीजों, आज हमें कोई मुसीबतें आती हैं, कोई तकलीफें आती हैं तो हम दुनिया की तरफ भागते हैं, दुनिया की तरफ भागते हैं। कभी उस नेता के पीछे भाग रहे हैं तो कभी उस अमीर आदमी के पीछे भागते हैं। आज हम कितने जगहों से जलील किए गए हैं, वजह क्या है? हमने मरकज तब्दील कर लिया, हमने अपने जहां मांगने का हुक्म था वहां नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हालांकि हर जगह घूम रहे हैं, कभी उनके पीछे अपना दुख बयान कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, इस दुनिया को अपना दुख बताओगे, सामने तो आपको चाहे जो बोल दे, लेकिन पीठ पीछे फिर यही कहेंगे आया था मेरे सामने, बहुत बड़ा शेर बनता है लेकिन आया था मेरे आगे घुटने टेक रहा था, बता रहा था ये मजबूरियां हैं, लोग मजा लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये दुनिया एक धोखा है। कोई परेशानियां हो, कोई मुसीबतें हो, हम अपने रब और उसके रसूल को अपनी मुसीबतें बयान करें, हम रब और उसके रसूल को अपनी हर एक बात बताएं। जिस दिन हमारे अंदर ये शौक आ गया, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दोनों ही संवरती हुई नजर आएगी। लेकिन आज हमने अपनी दुनिया इस कदर बर्बाद कर ली है कि आज हमें कुछ भी होता है तो हम दुनियादार को अपनी मुसीबतें बयान करते हैं, दुनियादार को अपनी बातें बताते हैं। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊं, जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाए तो इनको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनके महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उस नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हम बेकचों का कश है। आज हम दुनिया की तरफ क्यों भाग रहे हैं? आइए उस बारगाह मुस्तफा में। आज हमें कोई तकलीफें होती है, मेरे आका खुद फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान बैठे थे, मेरे आका ने फरमाया ऐ सहाबा हर चीज अपने रब से मांगो, हर चीज अपने रब से मांगो। सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो अपने रब से मांगो। लेकिन आज हमें बड़ी बड़ी मुसीबतें होती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें होती हैं, हम दुनियादार को अपनी बातें बताते फिरते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कभी हमारे अंदर ये दिल में ख्याल आया है, जब हम परेशान होते हैं तो कभी हमारे दिल में ख्याल आया है कि जा नमाज तन्हाई में बिछा ले, रात की तन्हाई में सबसे छुप कर जा नमाज बिछा ले और अपने रब से मांगे। परेशान हो गया हूँ रब्बे करीम मदद फरमा, परेशान हो गया हूँ अपने महबूब के सदक़े में हमारी मदद फरमा। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ जब हमें तकलीफ होती है तो मेरे आका को भी तकलीफ होती है। मैं बताता हूँ, एक नौजवान था, वो कर्जों में परेशान था, एक नौजवान था कर्जों में परेशान था, कर्जा बहुत हो गया था, जितने लोगों से उसने कर्जा लिया था सबों ने उस पर केस कर दिया, सबों ने उस पर केस कर दिया तो उसे अदालत में बुलाया गया, अदालत में बुलाया गया। काजी साहब पूछते हैं ऐ नौजवान कर्जा क्यों नहीं देता? तो नौजवान कहता है काजी साहब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, मुसीबतें इतनी आ गई हैं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है, कर्जा कहां से दूंगा? तो काजी साहब कहते हैं ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, कर्जा दे दो नहीं तो जेल भेज दिया
दिया जाएगा। वो नौजवान परेशान हो गया। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो वो परेशान हो गया और परेशानी की हालत में बाहर जाता हुआ रो रहा था, रोता हुआ बाहर जा रहा था। रास्ते में एक दरवेश से मुलाकात होती है, रास्ते में एक दरवेश से मुलाकात होती है। दरवेश ने पूछा, ऐ बेटा परेशान क्यों है, ऐ बेटा गमगीन क्यों है? तो नौजवान ने अपना दास्तान बताई और रो के कहने लगा, बाबा जी मुझे तो 3 दिन में जेल भेज दिया जाएगा, मुझे तो 3 दिन में जेल भेज दिया जाएगा। फिर उस दरवेश ने कहा, बेटा परेशान क्यों होता है? जा अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो हमारी मुसीबतें समझते हैं। जा अपना दर्द उन्हें बता जिसके दर्द से हमारे दर्द से जिसको तकलीफ होती है। जा अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो हमारी मुसीबतें समझते हैं। कहते हैं जा कसरत से घर में तन्हा बैठकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज और उनको याद कर। वो नौजवान जाता है, रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाता है और मेरे आका पर दुरूद भेजने लगता है और मेरे आका को शिद्दत से याद करने लगता है। मैं आपको बताता हूँ, तारीखियां बताती हैं जब किसी का दिल टूटता है, दिल से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं, क्योंकि कुरान कहता है अजीजुन अलैहिम अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना उन्हें देखा नहीं जाता, तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना उन्हें गवारा नहीं है। वो नौजवान रात की तन्हाइयों में बैठकर मेरे आका को याद करता रहा। इतना रोया था कि आंख से इतने आंसू बहे थे कि जमीन पर हो गई थी, मुसल्ला भीग गया था। वो नौजवान थक हार कर सो गया। जब आग लगी तो मेरे आका तशरीफ लाए, जब आग लगी तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और अपना दस्ते शफ़क़त रखा और कहा, है मेरे अजीज परेशान क्यों है, गमगीन क्यों है? वो नौजवान कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, आका आपसे कोई परेशानियां छुपी नहीं है। क्या कहने लगा, आका मुझे 3 दिन में जेल भेज दिया जाएगा, मेरे साथ साथ ये मामला हुआ है, मुझे 3 दिन में जेल भेज दिया जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे अजीज परेशान ना हो, मेरे अजीज परेशान ना हो, जा इस वक्त का जो बादशाह है, इस वक्त का जो खलीफा है, उसके दरबार में चले जा और जितनी तुझे जरूरत हो, जितने तुझे माल की जरूरत है तो उससे मांगना, वो अता कर देगा। वो नौजवान कहने लगा, आका मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, अगर कहूंगा मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है तो वो लोग कहेंगे, वो तो मुझे झुठला देंगे, कहेंगे ऐसे लोग आते रहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं, वो मेरा आशिक है, अगर वो तुझसे दलील मांगे तो उसे इतना बता देना कि रोज रात सोने से पहले तू मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद भेजता है और कल रात में पढ़ना भूल गया, थक कर सो गया था, अगर तुझसे दलील मांगे तो उसे इतना बता देना। वो नौजवान सुबह उठा और दौड़ता हुआ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, सबों की सबे चीरते हुए बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बादशाह हैरत में आ गया, कहा कैसी जरूरत करते हैं आज के लोग, कह रहे हैं मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है, डायरेक्ट आकर कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने भेजा है। वो नौजवान को अपने पास बुलाया, बादशाह ने अपने पास बुलाया और कहने लगा, बता माजरा क्या है, बता माजरा क्या है। तो नौजवान कहने लगा, मुझे अल्लाह के रसूल ने तेरे पास भेजा है और मुझे कुछ माल की जरूरत है, अल्लाह के रसूल ने मुझे तेरे पास भेजा है। तो वो बादशाह कहने लगा, ये क्यों कहता है कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, तुझे जो मांगना है मांग ले, ये क्यों कहता है कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है। तो वो नौजवान कहने लगा, नहीं मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और ये भी बताकर भेजा है कि तू रोज रात सोने से पहले मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद भेजता है और कल थक कर सो गया, पढ़ना भूल गया। बादशाह ने जब इतनी बात सुनी तो कुर्सी पे से उछल कर नीचे आया और हैरत में कहने लगा, ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो मेरी मेराज का दिन है, जिसके लिए जीता था वहां से पैगाम आ गया है, आज मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, जिसके लिए जीता था आज वहां से पैगाम आ गया है। बादशाह वश में आया और कहने लगा, खजानों की चाबियां खोल दी और कहने लगा, जा तुझे जितनी जरूरत है ले ले, जा तुझे जितनी जरूरत है ले ले। वो नौजवान गरीब तो था लेकिन लालची याश नहीं था, अपनी जरूरत भर का माल लिया और चलता बना। वो डायरेक्ट अदालत में हाजिर हुआ और कहा, आज बुलाओ जितने कर्ज खा हैं, सबका कर्जा आज ही दे दूंगा, सबका कर्जा आज ही दे दूंगा।
होगा। वो नौजवान दिल में ये सोच रहा था कि आज तो मान है जिद्दत नहीं होनी है। काजी साहब कुर्सी पर आए और उसके बाद उन्होंने अपनी गरजदार आवाज से कहा कि ऐ नौजवान बैठ जा। जब उसने गरजदार आवाज सुनी तो नौजवान सहम गया। कहा आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है? ऑर्डर कहीं बदल तो नहीं दिया गया? ऑर्डर कहीं बदल तो नहीं दिया गया? वो नौजवान बैठ गया, परेशान होकर बैठ गया और काजी साहब कहने लगे, ऐ नौजवान तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तू तेरा पूरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। नौजवान ने इतनी बात सुनी और कहने लगा कि काजी साहब आप यही बात 3 दिन पहले भी कह सकते थे जब आप मुझे जेल की धमकी दे रहे थे। तो काजी साहब कहने लगे 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं जानता था, फैसला सुनाकर चला गया था। जब रात सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा कि ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा, इस गरीब की मदद कर अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे आका के उसी फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, मैं मेरे आका के उसी फरमान पर अमल करना चाहता हूँ। ये उन दोनों में बातें चल रही थी। फिर जितने कर्ज खाते वो भी बोल पड़े, काजी साहब हम सबको माफ कीजिए, हम सब ने इस पर मुकदमा किया, यहाँ तक इसे जिंदगी में जब भी जरूरत हो हमसे ले सकता है। हम सब ने अपना मुकदमा वापस लिया, इसका कर्जा माफ किया, दुनिया में से जब भी जरूरत हो हमसे ले सकता है। वो नौजवान अदालत से और अदालत से बादशाह के दरबार से वक्त करते हुए निकला कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितने मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत, जैसे मेरा नबी, नारे हैदरी। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बताने का मकसद इतना है कि जब भी परेशानियां हो, जब भी दिल गमगीन हो, तो दुनिया को अपनी परेशानियां कभी बयान ना करे। दुनिया बस हमारा मजा ही लेती है, सामने चाहे जो कुछ हो, लेकिन पीठ पीछे फिर हमारी बुराइयां ही करनी है। ऐ मेरे अज़ीज़ों, जब भी परेशानियां हो, रात की तन्हाइयों में बैठ जाना और अल्लाह उसके रसूल को अपना गम बताना, अल्लाह और उसके रसूल को अपना गम बताना। कभी हमारे अंदर ये तमन्ना पैदा नहीं हुई कि बहुत दिन हो गए, गुनाहों ने घेर रखा है, कभी तो हम तन्हा बैठे और अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में हाजिर हो और अपने मुसीबतें, अपनी परेशानियां उन्हें बयान कर